Good morning, students. So, beta, today we are going to start with our next program, question number 4 from the seat. Okay, and you know that the topic is undergoing is object passing. So, first give a look to the problem itself. The problem says that on a plane any point can be represented with x and y known as coordinate of the point. Define a class point which can represent coordinate of the point and can perform following operation. So children, what we come to know after going through this part of the problem, this problem relates with the coordinate system. Okay, and all of you know that in the coordinate system a point can be represented on the plane by using its two axes, x and y axis. So now see that what is told in the problem. It is given a class point is there, two data members x and y as integer, and then member methods are given. The first method is point. This is the constructor which assigns 0 to x and y. Then the next method is given void read data to enter the values of the coordinates of that point x and y axis, and third method is void distance and point. Okay, and next method is void midpoint point comma point. Okay, which finds the midpoint of the two argument objects. Okay, then last method is to print the values of x and y, and finally it is told write a program to input any 2 points on a plane and find the midpoint and the distance between 2 points. Okay children, means in a coordinate system children, we have to take 2 points. Okay, and you know that these points will be represented with the help of the object of this class. Okay, and both the objects will be having two data members x and y to represent their x and y axis. Okay, and we have to perform two operations. First thing that we have to find the midpoint between them, and we have to also calculate the distance between these 2 points. Okay, by using the distance method. Okay, so now we see the result. How are we going to perform this? Okay, so children, here is your answer. Okay, so just go through the answer. In the answer children, now see, from the beginning import Java class point, and inside the class you will find two data members integer x and y, and you know there should be one blank space in between int x. Okay, so x and y are the two data members. After that the first method is here, point. Okay, what it does, both the data member x and y axis will be initialized to 0. Okay, after that the next method is void read data. Okay children, it takes the entry of x and y of both the data members, both the axes of the point x and y are entered here. Then the next method is given as void distance, and then the fourth method is void midpoint point a comma point b. Okay, so these are the, and the last method is void display point which prints both the axes x and y. Okay, so these all things are there. But I told you earlier also that children, in this type of problem, in the object passing or in the topic working with multiple object, the most important part of the program is main. Okay, that how are you going to write down the main, it is very important. So we also start with the main part. Okay, that how we are going to solve the problem. So you know that we have to take 2 points, okay, x and y axis, and after that we have to perform the operation. So now we see that. So look at the first line, point equal to new point. So children, you know that what we, what can we do, we can take the 2 points here. It is our x-axis and it is our y-axis. Okay, suppose now see that the first line is point equal to new point. तो suppose हमने यहाँ पे एक point यहाँ पे assume कर लिया. क्या नाम है बेटा इसका, a, और a के अंदर आपको पता है दो डेटा मेंबर होंगे.
एक्स एंड वाई। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसका तुरंत एक फंक्शन तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, कौन सा, पॉइंट वाला। और वो क्या करेगा, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को यहाँ पे 0 0 कर देगा अभी। ठीक है ना, तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, पहला जो यहाँ पे बना, ठीक है, इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। अगली लाइन देखिए मैंने क्या बोला, पॉइंट बी इक्वल टू न्यू पॉइंट, तो एक और यहाँ पे पॉइंट बन गया बी नाम से। ठीक है, और बी के पास भी अपना एक्स और वाई होगा। और ये बेटा सेकंड ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, हमारे सेकंड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे हमने यहाँ पे दो पॉइंट बना लिए, ए और बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक मेज़र करके प्रिंट करना है कैलकुलेट करके, और सेकंड थिंग दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट जो है कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान दो तो मेन में फिर एक थर्ड एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट हुआ है, दैट इज़ पॉइंट मिड इक्वल टू न्यू मिड पॉइंट। तो ये आपका जो है यहाँ पे सपोज मैंने एक और पॉइंट ले लिया और इसका नाम है मिड। ठीक है, तो ये जो मिड वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके पास भी इसके दो डेटा मेंबर होंगे, कौन कौन से, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ऐसे बेटा हमने यहाँ पे ये तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। और इसके बाद अब अगली लाइन देखिए मैंने क्या बोला, ए डॉट रीड डेटा। ए डॉट रीड डेटा आप जो है ए के थ्रू ये वाला मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वाला जो मेथड है रीड डेटा, ये सबसे पहले कहाँ चलने जा रहा है, ए की बॉडी में। ठीक है, तो जब ये ए की बॉडी में इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, ये एंटर एक्स एंड वाई, आपसे ये दो चीज़ों की यहाँ पे यूज़र से एंट्री ले लेगा। तो सपोज बेटा आपने एक्स और वाई की वैल्यू कितनी इनपुट कर दी, 20 एंड 30। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपने 20 इनपुट कर दी और वाई की वैल्यू 30 इनपुट कर दी। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलिए अगली लाइन पे आपने कहा बी डॉट रीड डेटा। तो ये जो रीड डेटा वाला मेथड है इसकी बेटा जो सेकंड कॉपी है दैट विल रन फॉर द ऑब्जेक्ट बी नाउ। So now when you will enter the value of x and y, okay, so then these value will be stored here into the second object. And suppose that if we enter the value 40 and 10, okay, so in this way children both the objects, both the points will get their x and y। देखिए a को भी अपने x और y की वैल्यू मिल गई है 20 और 30, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है b, इसको भी अपनी वैल्यू मिल गई है 40 एंड 10। ठीक है, तो हमने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा मेन जॉब शुरू होता है। पहला काम हमें क्या करना है, हमें ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेज़र करना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला बेटा जो है प्रोग्राम में दे दिया जाएगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि फार्मूला मुझे याद नहीं है। ठीक है, फार्मूला आपको पता है ना क्या होता है, फार्मूला जिन लोगों को याद नहीं है वो शायद देखिए प्रॉब्लम में दिया होगा। ठीक है, और प्रॉब्लम में अगर नहीं भी दिया है तो जो है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम आई और अगर दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस मेज़र करने के लिए आया तो ये फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा। तो देखो बेटा पहला जो मेथड है वो हमारा क्या है, वॉइड डिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, यानी कि हमको दिया गया था कि हम आपको एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और आपको दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेज़र करके प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसमें बेटा केवल एक ही ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है और हमें दो ऑब्जेक्ट यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो आपको मैंने लास्ट क्लासेस में सिखाया है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक बन जाएगा करंट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, उसमें पास कर देंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए मेन में मैंने क्या लाइन लिखी, मैंने बेटा मेन में लिखा ए डॉट डिस्टेंस बी। ठीक है, यानी ये जो मेथड है डिस्टेंस वाला ये मैंने कहाँ से कॉल किया, अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट से। यानी ए को मैंने क्या बना लिया, अपना करंट ऑब्जेक्ट बना लिया और बी को इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है ना, यानी कि ये जो बी है यहाँ पे बी के नाम से आ गया और बी का जो एक्स और वाई है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। एक्स की वैल्यू 40 है और वाई की वैल्यू 10 है। तो यानी कि बेटा अब इस समय ए की बॉडी के अंदर एक तो ए खुद हो गया
और सेकंड ये जो बी पास होके आया है, ठीक है ना। तो ये जो बी है, बी के जो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 है और 10 है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ए और बी दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1। अब सवाल ये है यहाँ पे कि किसको हम x2 माने, किसको हम x1 माने। तो अब आपको पता है कि भाई दोनों सेम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, किसी के पास x1 और x2 तो है नहीं, तो ये आपको खुद एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का जो x है उसको आप क्या मान लीजिए x1, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका जो x एक्सिस है उसको क्या मान लेंगे x2। और यही सेम चीज़ आप क्या करने वाले हो, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ भी यही चीज़ हम लोग करेंगे। तो हम बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट B आया है इसका जो x और y है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x2 और y2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब आप ये देखिए फॉर्मूला हमने क्या बोला, मैथ डॉट SQRT, क्यों, क्योंकि पूरे का हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा। x2 माइनस x1, यानी कि अब आप क्या करिए, देखिए ये जो x2 है वो क्या है, जो b जो पास होके आया है b का x है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, b डॉट एक्स माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए b डॉट एक्स माइनस एक्स, यानी ये जो b डॉट एक्स है ये क्या हो गया आपका x2 हो गया, यानी हमने अपने सेकंड वाले पॉइंट का x ले लिया। और ये जो खाली आपने x लिखा है ये समझ में आ रहा है कहाँ का x है, ये हमारे करंट ऑब्जेक्ट का। आपको याद है ना मैंने क्या बोला था कि जो करंट ऑब्जेक्ट होता है वो अपने डेटा मेंबर्स के नाम के पहले किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन तो इस समय एक ही बॉडी में चल रहा है ना, याद है ना। मेन में क्या लिखा था आपने, ए डॉट डिस्टेंस, यानी ये जो मेथड है ये कहाँ चल रहा है, एक ही बॉडी में। तो ए का जो एक्स है उ, उसको एक्सेस करने के लिए आपको ए डॉट एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधे खाली क्या लिखेंगे, एक्स। तो ये जो एक्स है ये किसका है, करंट ऑब्जेक्ट का है। तो यानी क्या हो गया, x2 माइनस x1 और कॉमा 2, क्योंकि मैथ डॉट पावर है ना तो ये दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस के बाद मैथ डॉट पावर b डॉट वाई माइनस वाई, समझ गए ना, ये y2 माइनस y1। तो ये जो आपने जो b पास हो के आया है इसके y को y2 माना है, और जो करंट ऑब्जेक्ट का y है a का, ठीक है, वो y है। तो यानी क्या हो गया, y2 माइनस y1 और कॉमा 2, मैथ डॉट पावर लगाया है तो इसका स्क्वायर। तो ये देखिए ये दोनों का यहाँ पे कैलकुलेट होके सम हो जाएगा, और पूरे को आपने मैथ डॉट SQRT में डाला है तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे, ठीक है। तो ये आपने डबल d में इसका जो रिज़ल्ट आया स्टोर कर लिया, और दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आपने उठा के प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो सपोज बेटा जो है आपका कुछ आंसर आ गया है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, 11.7 समथिंग, ठीक है। तो ऐसे आपका ये फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है आपका पॉइंट जो प्रॉब्लम में बोला गया था वो क्या बोला गया था कि दैट वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट, ठीक है ना, वॉइड मिड पॉइंट पॉइंट कॉमा पॉइंट। यानी यहाँ देखिए क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट पास किए जा रहे हैं, और क्या बोला है कि फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू द करंट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको हम पास करेंगे एक मेथड में, और आपको ये जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, जो मिड पॉइंट आएगा वो आपको करंट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेना है, ठीक है ना। तो अब आप समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट इस लाइन में, इस स्टेटमेंट में यूज़ होने वाले हैं। एक तो कोई करंट ऑब्जेक्ट होगा जो इस फंक्शन को कॉल करेगा मिड पॉइंट को, और दो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। तो बेटा मैं ए और बी को पास कर देता हूँ, ठीक है। आइए ये यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने कैसे ये काम किया। तो ज़रा ये लाइन देखिए मैंने क्या लिखी, मैंने यहाँ पे कहा मिड डॉट मिड पॉइंट, यानी देखिए मैंने बीच में यहाँ पे जो एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो क्रिएट किया था मिड डॉट, ठीक है ना। तो मिड वाला जो पॉइंट है इसको बेटा मैंने यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और इसमें मैंने ए को और बी को दोनों को इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। तो यानी कि ये जो मिड पॉइंट वाला जो मेथड है ये कहाँ पे काम कर रहा है इस समय, ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की बॉडी के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे काम कर रहा है मिड के अंदर, और ये दो ऑब्जेक्ट लेके आया ए और बी। तो आपको ए का जो एक्स और वाई पता है, ए का एक्स और वाई कितना है बेटा, 40 है, सॉरी 20 एंड 30 है, ठीक है। और जो बी है, बी का जो
एक्स और वाई है वो है 40 एंड 10। ठीक है, तो अब जरा अंदर आइए, दो लाइनें लिखी, ध्यान से देखिए। मैंने कहा x इक्वल टू a डॉट एक्स प्लस b डॉट एक्स, यानी पहला जो ऑब्जेक्ट का जो x है और जो सेकंड ऑब्जेक्ट का जो x है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपको पता है कि a का जो x है वो कितना है बेटा, 20 है, और b का जो x है 40 है, तो 40 प्लस 20 यानी 60 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब आप इस लाइन में ध्यान से सोचिए, 3 x यूज़ हुए हैं। ठीक है, a का x और b का x, यानी जो ये जो दोनों आर्गुमेंट आए थे, दोनों ऑब्जेक्ट आए थे, उनके x को ऐड करके 2 से डिवाइड किया और आंसर x में स्टोर हुआ। तो यहाँ पे सोचने की बात यह है कि ये x कहाँ का है। कुछ समझ में आ रहा है, x कहाँ का है? तो बेटा ये x किसका होगा, मिड का होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो फंक्शन कॉल किया है मिड पॉइंट, ये कहाँ से कॉल किया है, मिड, सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर से। ठीक है, तो यानी कि ये मिड का जो x है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और ऐसे ही आपने y के साथ किया, a डॉट वाई प्लस बी डॉट वाई, यानी दोनों पॉइंट के y ऐड कर लो। ठीक है, तो इसका y 30 है और इसका y 10 है, तो 30 प्लस 10 का हाफ कितना हो गया, 20, और ये 20 y में स्टोर हो गया, और ये y कहाँ का होगा, इसी मिड वाले ऑब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो मिड के y की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो बेटा यानी कि मेरा मिड पॉइंट निकल आया, और मिड पॉइंट के जो एक्सेस हैं वो भी हमको मिल गए। इसके x की वैल्यू 30 होगी और y की वैल्यू 20 होगी। यहाँ का x कैसे मिला कि हमने a और b दोनों के x को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, और y के लिए भी दोनों के y को ऐड करके 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ऐसे हमको अपने मिड पॉइंट के दोनों एक्सेस मिल गए। और अब क्या करना है, हमको मिड पॉइंट के इन दोनों एक्सेस को प्रिंट करना है। तो बस मेन में मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग वाला फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, और ये क्या करेगा, आपका x और y दोनों प्रिंट कर देगा। तो आपको पता है कि आपने इसको मिड से कॉल किया है, तो ये मिड में x की वैल्यू ये 30 और y की वैल्यू 20 प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, तो बेटा ऐसे आपका ये प्रोग्राम जो है हो जाएगा इजीली। और आपको मैं बता दूं कि बेटा ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोर्ड्स के ऊपर भी जो है प्रॉब्लम, बोर्ड में 2-3 बार ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी हैं। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को बार बार समझिएगा, क्योंकि अगला जो प्रोग्राम है वो भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही है। ठीक है, चलिए ओके, जब अगली क्लास में आएंगे तो फिर इसी का एक और प्रोग्राम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।